Truckloads of green, shiny, big capsicums are being packed into cartons from Gora Singh's farm in Feni Bhaga village in Mansa. Each carton weighs between 21 and 23 kilograms. In a good year, Gora Singh fetches a rate between Rs 25 and 35 per kg of capsicum. But this year, he is forced to sell it at throwaway prices of Rs 2 per kilo. Like him, close to 2,000 farmers from 15 villages around Mansa, Bhatinda and Firozpur are facing the same fate. ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਗਾਓ ਹੁਣ। ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ? ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਰੇਟ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਰਚ 1.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਹੀ। This belt of Mansa is conducive for growing vegetables. The farmers here told us that they switched to growing capsicum on a part of their fields because of government's push for crop diversification. But there is no safety net for situations like this one, where there is a glut in the market and the farmers have to give away their produce at throwaway prices. In the absence of an alternative, on April 20, the farmers protested. They dumped their capsicums on the Bhatinda-Mansa National Highway. Private vendors and horticulture department officials told the print that unpredictable weather conditions have led to capsicum flowing in from all states at the same time. The vegetable mandis are flooded with the rich produce, resulting in a massive price drop. नॉर्मल जो साल होते हैं जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो किस रेट पे आप उठाते हैं किसानों से? मैम पिछले साल हमने माले अप्रैल के महीने से लेके और मई जून की 20 तारीख तक 45 रुपये रेट तक खेत में उठाई है। अच्छा हाँ जी। और इस बार क्या 20 रुपये से लेके यानी कि 45 रुपये तक के रेट में वो डिपेंड करता है। हाँ वो मार्केट पर डिपेंड करता है, जैसे आगे रेट बढ़ेगा तो हम रेट बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक जिम्मेदार का भी। आगे मतलब मार्केट में हाँ मार्केट में अभी इसकी मतलब और नहीं हो रही है जी, इसको मतलब वो क्या कहते हैं इसको ज़्यादा डिमांड नहीं रही है मार्केट के अंदर, इसलिए रेट नहीं बढ़ रहा है इसलिए। हाँ जी। तो इस बार क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इस बार मैम इसके अंदर प्रॉब्लम ये हुआ, एक तो पहले चलता था यूपी सबसे फास्ट। यूपी से भी आप उठाते हैं? नहीं यूपी से भी उठाते हैं। यूपी का माल खत्म हो जाता है मार्च में जी, मार्च की लास्ट में जी। उनका वहाँ पहले कटाई शुरू हो जाती है? वहाँ जनवरी में कटाई शुरू हो जाती है और मार्च में खत्म हो जाता है। अब की बार क्या हुआ, यूपी भी साथ साथ चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। यूपी रामपुर बरेली या मुरादाबाद के पास यहाँ से जी, और उसके बाद फिर हरियाणा चलता है, बाद में पहले पंजाब चल जाता है जी। जैसे मान लिया पंजाब चले अप्रैल के महीने में और ये मई की 10 तारीख को खत्म हो जाता है, 1.5 महीने की फसल होती है यहाँ भी। ठीक है। उसके बाद हरियाणा शुरू होता है, अब की बार हरियाणा भी साथ साथ चल गया जी। तो आप बोल रहे हैं यूपी लेट चल रहा है? हाँ यूपी भी पहले शुरू हो गया है। यूपी भी अब तक चल रहा है और हरियाणा भी जल्दी शुरू हो गया अब की बार। तो अभी क्या रेट पे लेके जा रहे हैं आप? अभी मैम यहाँ से खेत से 2.5-3 रुपये किलो। 2.5-3 रुपये किलो, पर इतनी तो लागत भी नहीं है किसानों की। इस पर खर्चा बहुत है मैम, बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा, लेबर ज़्यादा पड़ती है, जिसकी मेडिसिन दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, बीज भी बहुत महंगा मैम इसका। A drop in the rate of the rich produce is hitting farmers hard. जो रेट है इसकी बार वो थोड़ा सा बहुत कम हो गया, जैसे 2 से 3 रुपये हो गया पर केजी। जो पिछली टाइम में जो इसी मंथ में देखें तो 10 से 12 रुपये पर केजी उनको रेट मिल रहा था। जैसे स्टार्टिंग में हम बात करें अप्रैल में स्टार्टिंग में हो जाता है तो उसका रेट 30-40 रुपये के पर केजी के हिसाब से होता है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन बढ़ती जाती है तो इसका रेट है 10, 12, 15 रुपये तक, 20 रुपये तक रहता है और एंड मई में जाके ये 4-5 रुपये रहता है। अब इस बार अप्रैल में ही इसका रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया। इस बार मैं बताता हूँ आपको, जैसे पहले इस टाइम पर अप्रैल में वहाँ से जो कलकत्ता साइड से कैप्सिकम आती थी वहाँ बारिशें नहीं हुई, जैसे वैसे वो भी कंटिन्यू चल रही है। वो कैप्सिकम की जो क्रॉप ख़त्म हो जाती थी बिल्कुल, उसके बाद हमारी पंजाब की स्टार्ट हो जाती है। इसकी बार वो क्रॉप बारिश नहीं हुई, वहाँ पर क्रॉप ख़राब नहीं, इसके कारण उनकी भी सप्लाई हो रही है, हमारी भी सप्लाई। उसका मेन कारण है जो दिल्ली में भी रेट है बहुत कम है।
Besides the glut in the mandis, Mansa also saw an increased production of capsicum this year. मानसा पिछली बार जो सब्जी कैप्सिकम का एरिया था वो 250 हेक्टेयर के करीब था और इस बार जो है डबल हो गया उससे, जैसा 450 450 हेक्टेयर हो गया। उसका कारण ये है कि पिछली साल जो रेट था शिमला मिर्च का अच्छा रेट रहा है, एवरेज 10-12 रुपये से कम नहीं हुआ। पर इस बार जो इस साल हुआ है वो स्टार्टिंग में रेट बहुत जैसे 30-40 रुपये से स्टार्ट हुआ था और अब 2-3 रुपये रह गए। इसका मेन कारण ये है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हुई और एरिया भी बढ़ गया है। जैसे सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम है इसकी। Unlike wheat and paddy, there is no MSP on vegetables. The farmers cannot even store their perishable items for long. And to avoid flooding the market with their produce, they are demanding cold storages from the government. जे एक साथ आ रही है 3 राज्यों की मिर्च ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣਾ बनाना है वो मंदा होवे, पर मंदा नहीं हो रहा वो उसका पूरे रेट पर जा रही है। मेरे ये हजम नहीं हो रहा हमें कि भी ये ज़्यादा आई है तो 3 राज्यों की 4 राज्यों की एक साथ मिर्च आ रही है मौसम के अनुकूल, पर वो इतनी महंगी क्यों फिर मिल रही है? वो मंदी होनी चाहिए। 1 रुपया 2 रुपये खरीद कर जाके 40 रुपये 20 रुपये मिल रही है। हमारे पंजाब में लुधियाना और जलंधर में वो कहते सानू 30 रुपये मिल रही है, 25 रुपये मिल रही है। ये पता नहीं क्या कारण है। इस करके भी असी मांग करते हैं सरकार से कि इस कोल्ड स्टोर बनाए जान, कोल्ड स्टोर में हमें जमा कर लिए, व्यापारी नूं भी मुनाफा होवे, हमें भी मुनाफा होवे। नहीं किसान है ये खेती जिहड़ी सब्जी वाली है छोड़ने जा रहे हैं। ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਗੰਢੇ ਦਾ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। While the government wants farmers to gradually move away from growing traditional wheat and paddy and introduce more variety to their fields, they don't end up buying that produce. So the farmers are dependent on private traders and market vagaries. Discouraging situations like this year's price drop might actually push farmers back to growing wheat and rice. In Punjab, this is Sonal Matharu for The Print.